ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਖਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਛਠਮ ਪੀਰ ਦਲ ਭੰਜਨ ਸੂਰਮਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦਿਵਸ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਪਲਟਾ ਆਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਆਪ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਉ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਉ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਟਾ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਕਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਗਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਕੀਰਤਨੀਏ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਣਾ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਮੰਗਲ ਰੂਪ 'ਚ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮਿਲਣੈ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਕਾਹਰ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੋਚਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਉ ਸੰਭਲ। ਸੰਭਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ। ਯਾਦ ਪਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੌੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਖਾਉ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਮਨਾ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਕਰ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ? ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਤੈ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कि जम्या पूत भगत गोविंद का। ध्यान दिया जी, भट्टा ने गुरु अर्जुन साहब लिए दो शब्द कहे, एक ब्रह्म ज्ञानी, दूसरा बचन क्या भगत उतर आयो। ते धन गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु हरगोबिंद साहब आउंदे ने ते उन्हां दी आमद ते कह रहे ने संसार दे लोगो कला पुत्र नहीं, पुत्र तां अनेकां घरां विच जमदे ने, पर साडे घर अंदर पुत्र गोबिंद दा भगत आया। जम्या पूत भगत गोबिंद का, गोबिंद दा भगत आया है। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह आप गुरता गद्दी ते विराजमान ने। थोड़ा जिहा इतिहासक पक्ष आप नाल साझा करना है, क्योंकि उस तो बिना इस गल नहीं क्लीयर हो सकेगी मीरी की है और पीरी की है। धन गुरु अर्जुन साहब चवर छत्र तखत दे मालक बने ने। सब तो पहला विरोधता धन गुरु अर्जुन साहब जी की किसी हकूमत के बंदे ने नहीं, सब तो पहला विरोधता धन गुरु अर्जुन देव जी की सक्के भरा बाबे पिरथीए ने की है। तो वह विरोधता केवल जबानी कलामी नहीं, उसने विरोधता की इंतहा कर दी कि जिस दिन धन गुरु अर्जुन साहब के घर गुरु हरगोबिंद साहब आउंदे ने, सिख संगत प्रसन्न है, गुरबाणी के कीर्तन चलते ने, देगां चलदियां ने, पर उस दिन बाबा पिरथीआ घर बैठा ये सोचता पिया कि गुरु हरगोबिंद साहब नूं तुरन तो पहला मैं खत्म किवें कर दें। समझियो थोड़ा जिहा, छठम गुरु भारी गुरु ने, इन्हां नूं कोई नहीं खत्म कर सकता। यतन किया, पहला हमला करवाया एक दाई दे राही, उस दाई का नाम सी फतो दाई। दाई की मौत हो गई, पर धन गुरु हरगोबिंद साहब नवे नरोए ने। उस तो बाद दूसरा यतन किया पिरथीए ने कि एक सपेरे दे राही, तीसरा यतन किया एक खिडावे दे राही। ना तो खिडावा जहर दे के मार सकिया, ना सपेरे का लियांदा होया सप गुरु हरगोबिंद साहब नूं खत्म कर सकिया। तीन खूनी वार तां सक्के ताए ने कीते, ते उस तो बाद तन दे उपर जिन्हों असी शब्द चेचक कहने हैं, गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द आउंदा शीतला आ गई। लोगों ने अनेकों तरह के उपचार कहे, पर धन गुरु अर्जुन साहब जी ने अपनी रसना तो गुरु हरगोबिंद साहब चेचका तो तंदरुस्त हुंदे ने ते शब्द शुकराने का उचारण करते ने। नेत्र प्रकाश किया गुरदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, शीतला ते रखिया बेखारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै। शीतला ते रखिया बेखारी है, परमात्मा ने रखिया है। नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव है। धन गुरु अर्जुन साहब कहते ने पूरे गुरु ने कृपा करके अंदर दा चानन दिता। ध्यान दिया जे, समा लंघे है, धन गुरु हरगोबिंद साहब की परवरिश होई। सत्कारयोग सिंह साहब उस स्थान तो आए ने जिस स्थान ते 98 साल की उम्र दे धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने पहली बार प्रकाश किया सी। बाबा बुढ़ा साहब जी की आरबला 98 साल की सी जिस दिन गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश किया गया, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी का जन्म सन 1506 का है, ते प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का पहला असी देखने खां इतिहास के पन्नियां विचों 1604 नूं है। 98 साल दे ने सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहब जी जिस दिन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश किया, तो सतगुरु ने उस दिन बाबा जी की शब्द कैसे भावपूर्त वरते, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी का जिक्र करना अज जरूरी है। कला प्रकाश ही नहीं, अज दे दिन बाबे बुढ़े ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं 2 किरपानां भी पाईयां। मीरी पीरी की कल चलेगी तो बाबा बुढ़ा साहब जी का जिक्र आवेगा। 98 साल के बिरध बापू नूं धन गुरु अर्जुन साहब ने उस दिन बचन किया, रामसर के किनारियों गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप प्रकाश कर ली हरमंदर साहब ले जान लगे। तो गुरु अर्जुन साहब ने जिहड़े बचन कहे इतिहास के अखरां ने सांभ के रखे ने। बाबा जी नूं क्या बाबा जी
कि अगे गुरु जो तुरदी सी आप पिछे तुरदे सो। अज शीस आप जी दे उत्ते गुरु का शब्द गुरु ग्रंथ साहिब होणगे, आप जी अगे चलोगे ते असी तुहाडे पिछे तुरांगे। इतिहास दे बचन ने कि साहिब बुढ़ा आगे की ना, बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं अगे कीता ते पाछे सतगुर सुखलीना बाबा बुढ़ा साहिब जी तो पिछे धन गुरु अर्जुन साहिब आप तुरे। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहिब का। खैर इधर नहीं तुरना, सिर्फ मीरी पीरी वाले पासे। इधर गुरु हरगोबिंद साहिब जी के आगमन तो बाद तालीम की गल चली कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी को विद्या कौन देगा, गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सिक्ख्या कौन देगा। तो उस वेले कोई विद्वान पंडित नहीं, कोई पढ़िया लिखिया केवल संसारक ज्ञानी नहीं। धन गुरु अर्जुन साहिब जी ने बचन किया कि मेरे पुत्र नूं विद्या देण वाले उस्ताद होणगे सत्कारयोग बाबा बुढ़ा साहिब जी। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने अरदास की गुरु हरगोबिंद साहिब दे आउण दी, जन्म दी। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने की नाम रखिया। ते जिस वेले तालीम दी विद्या दी गल चलदी है ते गुरु अर्जुन साहिब कहिंदे आ कि मेरे पुत्र नूं बाबा बुढ़ा साहिब जी तालीम देणगे। बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं बुलाया गया ते हथ जोड़ के निमरता दे पुंज ने पुछया, सच्ची सरकार आप जी ने दास नूं हुक्म की है, सेवा किस लिए बुलाया। कहन लगे बाबा जी तुसी हरगोबिंद बालक नूं शब्द यही सन, असी कहांगे गुरु हरगोबिंद साहिब नूं तालीम देनी है, विद्या देनी है, इन्हां नूं अखर बोध कराना है, हरगोबिंद साहिब जी नूं धुर की बाणी दी संथ्या देनी है। ते बाबा बुढ़ा साहिब ने कहा, सच्चे पातशाह आप किरपा करो, तेरे घर दा मैं खेत विच हल वाहण वाला एक वाही करन वाला जिमीदार हां, हाली हां, तेरे घर दे पशु पालन वाला, तेरे खेतां दी रखवाली करन वाला। इस बालक नूं तां विद्या तालीम ओ दे कि जिस कोल आप ज्ञान होवे, मैं तां अनपढ़, मैनू की समझ। ते धन गुरु अर्जुन साहिब दे बचन सन बाबा जी कि जेड़े गुण देख के आप जी नूं गुरु नानक साहिब ने बचपन विच गुण देख के बुढ़े दी पदवी दे दिती है। तुसी बालक सी पर गुरु नानक साहिब ने बजुर्गां दी पदवी दिती। मेरे पुत्र नूं ओ कुछ सुखा दिओ जिहदे नाल बाल उम्र दे विच भी बजुर्गी आ जांदी है। बजुर्गी दा अर्थ केवल उम्र दा ढलना नहीं, बजुर्गी दा अर्थ है अंदर दा ज्ञान। भाई नंद लाल जी तां बचन करदे आ, कहंदे ने शरीरक तौर ते अनेकां बजुर्ग हुंदे ने, पर मानसिक पद्धर ते लोगां दा विश्लेषण करके देखो ते बालकां नालों भी मत अल्प है। थोड़ी जी मैं इत्थे एक रोक के बेनती करनी चाहना, भावें ये मेरा विशा नहीं कि देखो इस राह ते मैं भी चल रहा, आप भी तुरदे पे हो, कोई ऐसा नहीं जिहड़ा इस मार्ग ते चलेगा नहीं कि मौत एक ओ शाह राह है, मौत एक ओ मार्ग है जिहड़ा संसार ते आया। कोई भी मौत दे मार्ग तो बच नहीं सकिया। मेरे गुरु तेग बहादुर जी ने तां इत्थों तक बचन कह दिते, आप रोज़ पढ़ते हो। देखो असी शब्द कहने हैं, बाजार विच काम करने हैं, मंदा पै जाए तो कदी नहीं अफसोस करते, कहने कला साडे नाल नहीं, सारे बाजार दा ही मंदा है। ध्यान दिया जे, जिमीदार दी फसल खराब हो जाए वो कदी भी अपने दिल नूं नहीं लांदा, कहंदा अकल्ला मेरे नाल नहीं, आ देखो सारिਆਂ दे खेत जिहड़े ने खराब हो गए। कोई बीमारी फैल जाए असी कहने अकली मेरे नाल नहीं, पूरे समाज विच ये बीमारी फैल गई। पर मौत एक ऐसी है जदों आउंदी है ते बंदा रब नूं उलामे दिंदा है, क्यों मेरे नाल वापरी। प्यारिया चेते रखी, कली तेरे नाल नहीं, ये तां सारे संसार नाल वापरदी पई है। बाजार दा मंदा तू स्वीकार कर सकना है, खेत खराब होण तू मन सकना सारिਆਂ नाल वापरी, ते जदों मौत आउंदी है उदों क्यों नहीं समझदा कि सारिਆਂ नाल वापरनी है। साहिब गुरु तेग बहादुर जी ने फरमाया कि चिंता तां की कीजिए,
उस गल की चिंता कर जिहड़ी तेरे नाल वापरी, समाज नाल संसार नाल नहीं वापरी। चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं। कोई मैनू दस खां केड़ा घर है जिहदे विच सदीव काल लई लोग टिके। बाबा बुढ़ा साहब बचपन तो बजुर्ग बन गए। थोड़ी जिवें जे रुकिया हाँ, देखो साडे ते बचपन हुंदा है, जे परमात्मा जिंदगी दे ते बचपन तो बाद जवानी है, जवानी तो बाद जाके तीसरा पड़ाव बुढ़ेपा है। ते सतगुरु ने बाणी विच फरमाया बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, तीसरी अवस्था बजुर्गी है। पर इत्थे 12 साल का बच्चा उन्होंने धन गुरु नानक साहब कहते ने तू बालक नहीं तू बुढ़ा है। ते भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच अद्धी तुक विच बाबे बुढ़े दे जीवन नूं बयान किया। उन्होंने एक तुक कही है, अद्धी तुक अजिते रंधावे लई है ते अद्धी तुक बाबे बुढ़े लई है। वो तुक है कि अजिता रंधावा भला है। ये अजिता रंधावा खिते रंधावे दा पुत्र सी। ये कौन सन? ये बटाले दा हाकम सी इता रंधावा, ओदा पुत्र सी अजिता रंधावा। ते अजिते रंधावे ते किरपा उदों हुई जदों गुरु नानक साहब जी माता साडे सुलखणी उन्हां नूं विआहण वास्ते बटाले दी धरती ते गए सन। जदों हजूर गए, अजिते रंधावे दे पिता खिते रंधावे ने कहा सी बेटा देख अपने पटवारी, बाबा मूला जी भी पटवारी सन, उन्हां दी बच्ची दी बरात आई है। ਧੀਆਂ सब दियां सांझियां हुंदियां ने, मेरे ते शरीर दे विच ताकत नहीं, बजुर्गी बुढ़ेपा है, तू पुत्र बरात नूं जी आया अगों कहना है। अजिता रंधावा गया ते धन गुरु नानक साहब दी पहली झलक देख के प्यारिओ वो रंधावियां दा पुत्र गुरु नानक जी दा मरीद हो गया। उत्थे फिर भाई साहब ने कहा अजिता रंधावा भला है, बड़ा चंगा गुरमत कमांदा है। ते अगे बाबे बुढ़े की गल करके कह लगे बूढ़ा बुढ़ा एक मन त्यावै। बूढ़ा दा अखरी अर्थ है भाई बूढ़ा माँ बाप ने नाम रखे है, बुढ़ा गुरु नानक साहब ने नाम दिता। कह लगे बूढ़ा बुढ़ा एक मन त्यावै, भाई बूढ़ा बाबा बुढ़ा बन गया। ते जड़े एक मन हो के उस अकाल पुरख की इबादत करते हैं। देखो वो बचपन विच भी बुढ़े बन गए, पर असी कई बारी देखने उम्र ढलदी पई है, बुढ़ेपे विच भी साडा बचपना नहीं जाता पिया। ध्यान दिया जे थे भाई साहब भाई नंद लाल ने एक बचन किया जिहड़ा अर्ज कर लगा। कह लगे घर बजुर्गी बायदत कुन बंदगी, जे तू सही अर्थां विच बजुर्ग बनना चाहना ते बंदगी नूं जिंदगी विच धारण कर लै। जिन्हां कोल बंदगी नहीं वो बजुर्ग हो के उम्र करके बजुर्ग ने पर मानसिक तौर पर बालक ने। ते जे तेरे कोल बंदगी आ गई चेते रखी तू बालक हो के भी बजुर्ग होवेगा। आ धन गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं परसों आपने चेते करना है। ते खास करके दिल्ली दियां संगतां मेरे बाला प्रीतम दुख निवारण वाले तो कुर्बान जांदियां ने। आरबला कितनी कुख है पर अंदर तुसी देखो बजुर्गी है। भाई नंद लाल कह रहे ने घर बजुर्गी बायदत कुन बंदगी, वरना आखिर में कशी शर्मिंदगी। शर्म कुन हाँ शर्म कुन हाँ शर्म कुन, ई दिले तू संग खुद ना नरम कर, इस पत्थर वर्गे दिल नूं किते बंदगी करके नरम कर लै। क्यों पत्थर बनया बैठा है दिल? बाबा बुढ़ा साहब वो बजुर्ग ने, उन्होंने तलीम दी गुरु हरगोबिंद साहब नूं। समा आया गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया बाबा बुढ़ा जी ने। अज धन गुरु अर्जुन साहब अमृतसर साहब की धरती तो लाहौर की धरती नूं तुर लगे ने। आउणा आपां गुरमुखो मीरी पीरी शस्त्र धारण दिवस वाले ते इतिहास देखें। धन गुरु अर्जुन साहब 22 मई सन 1606 नूं अमृतसर साहब की धरती तो लाहौर नूं गए ने। 30 मई 1606 नूं मेरे धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी की शहादत हुंदी है। इसे समय के दरमियान धन गुरु हरगोबिंद साहब जी बालक हरगोबिंद जी नूं तुर लग्या कुछ बचन कहे सन।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੂ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਤੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੇਤੇ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜਨੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਮੀਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਜੋ ਆਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਧ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਦਬ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੌਮੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਬੇਟਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਜਾਣਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਆਈ। ਪਰ ਤੱਕ ਹਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਨੇ ਕਿ ਪੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਰ ਤੱਕ ਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ 5 ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। 5 ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਪਰਿਣਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ੂਰ ਲਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮ ਤਪਤ ਬਾਲੂ ਹੈ, ਬਾਲੂ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰੇਤ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤਪਤ ਲੋਹ, ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤਪਤ ਨੀਰ। ਤਪਤ ਨੀਰ, ਤਪਤ ਲੋਹ ਤੇ ਤਪਤ ਬਾਲੂ, 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਤੁਕਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 7 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 7 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੁਕਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, 5 ਪੰਕਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ। 5 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 5 ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। 5 ਰਾਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। 5 ਰਾਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਨੇ, 5 ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਖਜ਼ੂਰ ਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ, ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਸਨ, ਚਮਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਾ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਾ ਜਾਂ ਚਿਰਾਗ ਜਾਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਟਿਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸਨ ਪਰ ਸਰਵਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਰਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਪਰ ਘੰਡੇ ਖੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦਾ? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਥਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, 5-5 6-6 ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਕਿਤਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੜਕਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
प्यारिओ वार वार सवास लेने विकास है। जे साडी जिंदगी विच वार वार दिल की धड़कन, खून का सर्कल ते साडे शरीर का विकास हुंदा है, ते कदी झाती मार के देखिए साडे अंदर का विकास क्यों नहीं हुंदा पिया। अंदर उसे तरह मलीनता विच ओही निंदिया, ओही दवैश, ओही चुगली। ध्यान दिया जे धन गुरु ग्रंथ साहिब ने एक बचन क्या है, असी खिड़कियां दरवाजे घरां नूं क्यों लाने हैं। चलो ठीक है, माया करके कोई चंगी लकड़ ला लै, कोई मंदी ला लै, अमीर चंगी लकड़ लाएगा, आम सादी कोई लकड़ ला लेगा। पर जे कोई पूछे भी दरवाजे ते खिड़कियां घरां दे रखे क्यों जाते ने, इन्हां दा सिर्फ इक्को कारण है कि जदों ठंडी हवा चले उदों खिड़की खोल ली जाए, ते जदों खनेरी मिट्टी आउंदी होवे उदों दरवाजे बंद किए जाण। रोशनदान इस करके रखने आ कि जे सूरज दियां किरणां आउण ते रोशनदान खोलिया जाए, ते जे मिट्टी आउंदी होवे, गर्द आउंदी होवे, ते उस खिड़की नूं, उस रोशनदान नूं बंद किया जाए। इसे करके रखे ने। ते दरवाजे इस करके रखने आ कि घरों आउण ते जाण दा साधन अंदर वरना ते तां भी दरवाजे की लोड़, बाहर निकलना ते तां भी दरवाजे की लोड़। ध्यान दिया जे बाहर ते घरां विच गर्द आवे, मिट्टी आवे, खिड़कियां ते दरवाजे बंद करने आ, ते जदों किते ठंडी हवा रुमके जां किते सूरज दियां किरणां आउण, खिड़कियां दरवाजे खोलने आ। प्यारिओ शरीर भी एक घर है। परमात्मा ने इंद्रे दरवाजे, रोशनदान ते खिड़कियां दिते ने। बाहर दी मिट्टी तां तू दरवाजे बंद करके रोकना है, जिहड़ी अंदर मिट्टी पैंदी पई है कदी इहनूं भी रोकण दी जाच सिख लै। ध्यान दिया जी, आ रोशनदान कदी बंद कीते ने? गुरु दे शब्द नूं सुणदिआं ये तां अंदर गंदगी सट्टी जाण, कदी नहीं बंद हुंदे। इस जबान दे दरवाजे नूं कदी बंद कीता है? बिल्कुल नहीं। कबीर साहब ने कहा, मेरे गुरु ने मैनू गल सिखाई कि तेरा शरीर एक घर है, तेनू खिड़कियां, दरवाजे ते रोशनदान दिते ने। गुरु कोलों जाच सिख लै, दरवाजे बंद कदों करने ने ते खोलने कदों। आप जी एक बचन पढ़ते हो, संतोह कबीर साहब दा, संतोह मन पवनै सुख बनिया, किश जोग प्राप्त गनिया, गुर दिखलाई मोरी, मेरे गुरु ने रस्ते दिखा दिते, जित मिर्ग परत है चोरी, जिदे नाल अंदर ये मिर्ग वकारां दे साडे अंदर नूं चुगदे ने, चरदे ने। जित मिर्ग परत है चोरी, मूंह दलीए दरवाजे, जदों दरवाजे बंद कीते, बाहरों कन्नां नाल कीर्तन सुनिया सी, अखां बंद करके शब्द सुनिया, ते जदों घर जाके नेत्र बंद कीते, जिहड़ा संगत भी सुनिया सी वो अंदर फिर चलन लग पिया। आखिर बाणी सानू अवस्था दसदी है, क्योंकि बाणी कविता जा ख्याल नहीं, ये तो गुरु अर्जुन देव जी का सीना है, धन गुरु अर्जुन साहब का हिरदा है। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग परत है चोरी, मूंद लिए दरवाजे, बाजियले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, खिरदा कमल भरिया पिया सी, वकारां दे पानी नाल जल मेटिया, उभा करिया। मेरे गुरु ने कृपा की, जदों इंद्रियां नूं टिकाण दी जाच आई, अंदर दा हिरदे दा कौले दे विचों भी मैल निकल गई। मैं बेनती जिहड़ी कर लगा, तवज्जो दिया जे। पहला दिन गुरु अर्जुन साहब दा शहादत वेले इस तरह जिवें मच्छी ते पानी दा प्यार, दूजा दिन तसियां दा इस तरह कि जिवें पतंगे दा ते ओदी दीवे दी लोह दा, तीजा दिन इस तरह कि जिवें गुरमुखो एक मिर्ग दा ते कंडे खेड़े दी आवाज़ दा। जदों चौथा दिन आया, अज गुरु अर्जुन साहब चुप हो गए सन, अखां भी बंद कर लईआं, सतगुरु दे तसीहे होए, लब भी बंद कर ले। चौथा दिन ओ चुप सी कि जिवें कमल दे फुੱਲ विच भंवरा बैठा होवे, सुगंधी लैंदियां अपने आप ही चुप कर जाता है। तन गुरु अर्जुन साहब चुप ने। ते जदों पंजवां दिन आया, ते अज अखीरली रात गुरु अर्जुन देव सारी रात बोले, ते किन्हां नूं बोले? जेड़े 5 सिख सामने खलोते सन, बोल बोल के सारी रात उपदेश दिता। ते उस वेले भाई गुरदास कहंदे ने, जे कोई पूछे 5 दिन दे तसीहे, ते गुरु अर्जुन दे प्यार मच्छी दी तरह,
दीदार पतंगे की तरह, सरोत मिर्ग की तरह, अंदर दा चुप कमल के फुल विच टिके हुए भवरे की तरह, ते प्यारिओ उपदेश पपीए की तरह। ये क्यों? कहते ने गुरु अर्जुन देव कुल अंदर दा सुख है, जिदे कुल अंदर दा सुख होवे उन्होंने बाहर दी लू भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे धन गुरु अर्जुन साहब संबंधी भाई गुरदास ने बचन कहे, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पौड़ी चेते है, रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत निर्बाणी, दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर जोत समाणी, शब्द सुरत लिव मिर्ग ज्यों भीड़ पई चित अवर ना आनी, चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संपट विच रैण विहाणी, ते पंजवीं रात सी गुर उपदेश ना विसरै, बा बीए ज्यों आख वखाणी, गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध। प्यारिओ ए जे समाधियां, हुण तां आपां समाधि दे अर्थ करने हैं, नेत्र बंद करके बईए, ये भी चंगी गल है कि समाधि है। जे किसी ने गुरसिੱਖੀ की समाधि देखनी है तो लाहौर की तत्ती तवी वेखियो, जिथे बलदी कोई देग, उबलदी कोई देग, तपदी कोई तवी, ते धन गुरु अर्जुन साहब फिर भी समाधि विच ने। गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध साध संग जानी, गुरु अर्जुन विटों कुर्बानी। भाई साहब ने ये 7 तुकां, यूं कह लो 6.5 तुकां गुरु अर्जुन देव जी की सिफत विच कहियां। धन गुरु अर्जुन साहब ने चलाने वेले शरीरक तौर ते जदों कायम ने, उदों एक बचन किया सी, कह लगे हो भलिओ तुसी तवी ते तन नूं तपांदे पए हो, तुसी शीश विच रेता पांदे पए हो, उबलदी देग विच तपाण दा यतन करदे हो, पर चेते रखियो बलदियां होईयां अग दियां लाटां हुण बुझणगीआं नहीं। वक्त आवेगा तुसी हवेली विच मेरी आवाज़ बंद करनी चाहते हो, मेरी जबान नूं रोकण वालिओ, मेरे खिरदे दी आवाज़ तां मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच रख आया, उस आवाज़ नूं तां कोई बंद ही नहीं कर सकता। आ सुखमनी साहब की कहे, धन गुरु अर्जुन देव जी का खिरदा है, पौने 700 अंग बंद है, 1430 अंग तां सारे ने ना इस स्वरूप दे, पौना 700 अंग केवल गुरु अर्जुन देव जी की बाणी बनेगी, क्योंकि बाणी दे बोयथ ने, फिर एडे वड्डे जहाज ने। तुसी पढ़े लिखे एक गल समझदे हो, कोई भी चीज़ तैयार की जाती है सवारी, साइकिल तो लैके समुंदरी बेड़े तक, शिप तक, हर चीज़ की लिमिट है। आप जानते हो साइकिल की भी लिमिट है, एक शरीर या 2 आदमी या 2 सवारियां बैठनगियां। मोटरसाइकिल की लिमिट है, कार की लिमिट है। बाहर तो असीं देखने इत्थों तक कि जे वध असवारी बिठाई होवे लिमिट तो जिन्नी उहदी समर्था है, तो कई बारी उसनूं जुर्माना भी किया जाता है। साइकिल की, मोटरसाइकिल की, स्कूटर की, कार की, बस की, रेल गड्डी के कोच की, हवाई जहाज की, शिप की कोई लिमिट है, इन्ने को बैठ सकते हैं। पर भट्ट कहते ने गुरु अर्जुन देव की बाणी की कोई लिमिट नहीं, सारी सृष्टि इको वेले गुरु अर्जुन देव कहे, ते गुरु अर्जुन देव वो जहाज ने जिहड़े सारिਆਂ ਨੂੰ इको पूर विच पार कर देंदे, कोई लिमिट नहीं। तुसीं पढ़दे हो कि कलयुग जहाज अर्जुन गुरु भट्ट, कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, कले पंजाब दे सिख नहीं, दिल्ली दे मनुख नहीं, हिंदुस्तान दे मनुख नहीं, ऐ संसार दे लोगों जिथे भी इंसान जात है, कोई गुरु अर्जुन देव की बाणी पढ़ो सारे पार हो गए। कलयुग जहाज अर्जुन गुरु, सगल सृष्टि लग बेहतरो, सारी सृष्टि गुरु अर्जुन देव के चरणों न लग के तर जाएगी। तन गुरु अर्जुन देव शहीद होने तो पहला ये बाणी के बचन नहीं, पर बाद विच कवियां ने, शायरां ने, विद्वाना ने यतन किया रंग भरन दा। शहीद होने तो पहला ये बचन कहे, उस कवि की कलम दे विचों निकले हुए अखर ने। उर्दू का अदीब है, गुरु अर्जुन साहब के मुख तो कहा रहा है, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है। सदा का अखरी अर्थ है आवाज़, मेरी सद, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। वो भले हो
ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਵਾਲਿਓ, ਵਕਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतिशो आहन बहुत बुलंद सही, अग दियां लाटां बड़ियां उच्चियां ने, हा दरवाजे ते दीवारां हवेली दियां उच्चियां ने, पर जेड़ा सच कहन लगा वां ओनू हवेली दियां दीवारां भी नहीं रोक सकणगियां। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतिशो आन बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों, हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। तन गुरु हरगोबिंद साहब, मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों, हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। 5 सिख लाहौर गए सन, तन गुरु अर्जुन साहब नाल अज रावी नूं पार करके वापस इधर आए अमृतसर दी धरती वल। तन गुरु अर्जुन साहब नहीं आए, 5 सिख केवल वापस आए। मैं सिर्फ जेड़ा दिन आप गुरमुख प्यारे वीर ने उपराला किया ते आप प्रबंधक हैं, क्योंकि अज दा ये दिन है। तन गुरु अर्जुन साहब नहीं आए, शरीरक तौर ते 5 सिख आए ने। तन गुरु हरगोबिंद साहब, बाबा बुढ़ा जी, भाई साहब भाई गुरदास जी, मात गंगा जी ते जेड़े होर सिर कड आगू सिख ने, वो 5 दे कोल अगे आए ने। पुछया गया ते फिर 5 ने दसिया धन गुरु अर्जुन साहब नूं इस ढंग नाल तसीहे दे के शहीद किया गया। ध्यान दिया जे गुरमुखो, मेरे धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने पिता दी शहादत तो बाद एक तकरीर दिती सी। उस तो बाद दूसरा काम किया, एक तख्त रचिया, ते तीसरा अज दा दिन तुसी जिहड़ा मना रहे हो, बाबे बुढ़े महापुरुष नूं कहा जिन्हां दी उम्र 100 साल तो टप चुकी सी कि बाबा जी जिन्हां ने अपनी जिंदगी विच 3 पड़ां देखे ने। बाबा बुढ़ा साहब ने गुरबाणी दा युग वेखिया, गुरुआं नूं बाणी उचारण करदिआं वेखिया। बाबे बुढ़े ने कुर्बानी देंदियां गुरु अर्जुन देव नूं कुर्बान हुंदिआं जांदिआं देखिया है। गुरबाणी देखी, कुर्बानी देखी, ते तीजी बाबे बुढ़े ने अपनियां अखां नाल शस्त्रां दा युग भी देखिया। पहला गुरबाणी, फिर कुर्बानी, ते तीसरा हजूर नूं शस्त्र धारन दा जिहड़ा अज दिन। इत्थे मैं एक बेनती करनी चाहना, गुरु हरगोबिंद साहब पहली गल चेते रखियो, मीरी पीरी दे मालक ने, मालक ने। दूसरी एक बेनती, मीरी पीरी का अर्थ की है। शब्द असी सारे कहने कि मीरी ते पीरी दियां 2 तलवारां किरपानां बनियां, उत्थे तलवारी बधिया। अकाल दा तख्त हजूर ने सिरजिया, पिता जी की शहादत हुई, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कोल बुलाया, कहन लगे राजियां दे तख्त इस करके हुंदे ने इंसाफ मिले, ते जिस तख्त ते बैठ के परमात्मा दी गल सच दी गल करन वालियां नूं भी तसीहे दिते जांदे ने। मैं उस तख्त की सिरजना करनी चाहना जिथे आए हुए मजलूम नूं गरीब नूं रखिया भी मिले, ते जिथों किते ना इंसाफ मिले उन्होंने इस तख्त तो इंसाफ मिले। ध्यान दिया जे, पर तख्त की मर्यादा बहुत उच्ची है। ये गल वखरी कि वक्ती तौर पर कई बारी साडे अंदर की कमजोरी करके असी पैरा नहीं दे सकते, पर तख्त उस तरह उच्चा रहेगा। किसी की गलती करके चेते रखो, तख्त नीवा नहीं जे हुंदा। धन गुरु हरगोबिंद साहब उन्होंने तख्त जदों रचन लगे, उस तख्त का नाम की रखना है, पिता के नाम ते नहीं, अपने नाम ते नहीं। कई बारी मैं सोचना कि ਜਿਹੜੀਆਂ हजूर ने इमारतां भी बनाईयां, उन्हां दे नाम ਜਿਹੜੇ रखे बड़े भावपूर्त ने। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ आप जाते हो, गुरमुखो 5 सरोवर ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। असल विच 5 बाहर दे सरोवर नहीं, ये साडी अंतर यात्रा है। पहला सरोवर संतोखसर, दूसरा सरोवर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, तीसरा सरोवर रामसर। इतिहास अनुसार इसे तरह बने ने। चौथा सरोवर विवेकसर ते 5वां सरोवर कौलसर। असल विच साडे अंदर दी यात्रा है। जे तू हिरदे कौल विच परमात्मा नूं टिकाना चाहना है
तो सब तो पहली गल तेरे कोल संतोख होना चाहिए है। संतोख तो बिना नाम अमृत नहीं टिकना। जिस कोल संतोख है वो अमृत सरोवर का इशनानी है। जिस कोल अमृत सरोवर है वो राम सर दियां टुबियां लांदा है। जिदे कोल संतोख अमृत ते नाम है राम का, वो फिर सही अर्थां विच विवेक सर दा इशनानी है, वो विवेकी है। ते जिदे कोल चार गुण आ गए, संतोख आ गया, अमृत आ गया, उस दे कोल राम का नाम आ गया, विवेक आ गया, प्यारिओ फिर वो पंजवां पड़ा वो कौल सर दा इशनानी है। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੌਲ भी इशनान कर लेंदा। ये अंदर दी एक यात्रा है। मेरे सतगुरु ने एक खिन मैं विच निकलन लगा, आनंदपुर साहिब आप जानते हो, खोलगढ़ किला, तारागढ़ किला, लोहगढ़ किला, आनंदगढ़ किला, पर जिथे हजूर ने अमृत की दात दी, ਉਹਦਾ नाम पिता के नाम ते नहीं, ਉਹਦਾ नाम अपने नाम ते नहीं, माता दे नाम ते नहीं, उस किले का नाम रखिया केशगढ़। ਇਹਦਾ मतलब सी ਉਹ सिखा चेते रखी, मैं सब तो वध प्यार केसां नूं करनों, मैं तेरे केसां दे नाम ते किले का नाम रख के चलिया। वो केशगढ़ है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब मैं जिहड़ी बेनती कर लगा मैं, हरमंदर साहिब सी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने अज बाबा बुढ़ा साहिब जी भाई साहब भाई गुरदास जी नूं अपने नाम लिया। प्यारिओ अकाल दा तख्त बनाया गया। इत्थे शब्द अकाल गुरु ग्रंथ साहिब विच पहली बार मूल मंत्र विच आउंदा है, बाद विच बड़ी वारी आया। वो पहला शब्द है अकाल मूरत। ध्यान दिया जे दो शब्द ने, एक काल एक अकाल। अकाल असी पढ़ने ऐड़ा अगेतर लगा है। काल दा अर्थ बाणी विच दो आया है। दो तरह नाल काल शब्द की वरतों की। काल का अर्थ है समा ते काल का अखरी अर्थ है मौत। ध्यान दिया जे असी जदों पढ़ने दिन ते पहर पहर ते घरियां आव घटै तन छीजै काल अहेरी फिरै बदक जो। इत्थे काल का अर्थ है मौत। असी एक बचन पढ़ने गुरु ग्रंथ साहिब विच वो आउंदा है, कबीर काल करंता अवह कर। उत्थे काल का अर्थ है कल। ते तीसरा शब्द असी चौपई विच पढ़ने हाँ कि काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। ओदा अर्थ है समा। थोड़ा जिस नुकते नूं समझो, अकाल क्यों? काल शब्द समा, काल शब्द कल, काल शब्द मौत। यही कारण एक हिंदी जैसी पंजाबी विच भी इहनूं शब्द नूं वरतने कल, किसी होर भाषा विच शायद ये शब्द नहीं वरत्या जाएगा। शब्द एक होवे ते दो दिनां दे अर्थ करदा होवे। असी शब्द वरतने हाँ। अंग्रेजी विच तुसी पढ़े लिखे समझदे हो, बीते हुए दिन लई शब्द असी होर कहने हाँ, आउण वाले लई होर शब्द वरतने हाँ, ते जिहड़ा दिन लंघदा उहदे लई होर। असी 3 दिनां लई 3 शब्द वरतने हाँ, टुडे, यस्टरडे या टुमारो। पर एक ऐसा शब्द कल है जिन्हों असी वरतने हाँ, कल मैं ये काम कीता सी, कल मैं ये करांगा। कल शब्द बीते लई भी ते आउण वाले लई दोवां लई क्यों? ये बड़ा डूंगा अर्थ है गुरमुखो। कल दा अर्थ है जेड़ा समा मेरे तो लंघ चुका है। कल तो शब्द काल बने, कल मैं कीता सी वो निकल गया, कल मैं करांगा ओदा पता नहीं अजे आउणा है कि नहीं, तां ही शब्द वरतिया कल तो काल। काल दा अर्थ ये बना दिता जेड़ा बंदे दे हत्थ विच नहीं आउंदा। बीतिया होया लंघ जांदा, कदी खत नहीं आया, आउण वाले दा भरोसा की। धन गुरु हरगोबिंद साहिब ने क्या काल समा हर एक नूं खाएगा, काल मौत हर एक नूं खाएगी। कहन लगे जेड़ी इट पहली मैं रखन लगा वो सारी बाबा बुढ़ा ते भाई गुरदास करनगे। ये अकाल दा तख्त होवेगा, समा ते मौत दे उत्ते कदी प्रभाव नहीं पा सकणगे। थोड़ा जिहा फिर समझियो, जहांगीर दे तख्त, इस दिल्ली दे तख्त दा मालक जहांगीर है। कित्थे जहांगीर दा तख्त, कित्थे जहांगीर दे सिपाही, कित्थे जहांगीर दी सेना। अज कोई कह कहां खलो के कि जहांगीर दा हुक्म है, सारी देश दी प्रजा इस गल नूं मन्ने, ते लोग कहणगे मरिया होयां दे हुक्म नहीं चलदे, उन्हां दे तख्त कूड़े ते हुक्म भी कूड़े।
पर मेरे गुरु हरगोबिंद साहब शरीरक तौर पर भावें चले गए, पर उन्हां दे तख्त ते खलो के जदों हुक्म आउंदा है, ध्यान दिया जे सारे सिख जगत नूं सिर झुकाना पैंदा है। जहांगीर दे तख्त अगे कोई नहीं झुकदा, उहदा तख्त भी नहीं, हुक्म भी नहीं। हुक्म उहदा चलदा जिहदी हकूमत होवे ते जिहदी हकूमत होवे तख्त भी उहदे कायम रहिंदे। उत्थे खजूर ने अकाल दा तख्त बनाया। प्यारिओ फिर नाल गुरबिलास विच एक बचन आउंदा है, कहंदे ने किसे मिस्त्री नूं नहीं लाया। शब्द की वरतिया, कहन लगे किसी राज ने हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। नी गुरु हरगोबिंद साहब ने रखी ते बनाया बाबे बुढ़े, ते भाई गुरदास ने पहला इनू अकाल बूंगा भी कहते रहे। थड़ा साहब भी सी, बाद विच इमारत खड़ी की गई। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल दा तख्त बनाने तो बाद अज तख्त ते मेरे सच्ची सरकार विराजमान होए। उत्थे खजूर दे कोल दो ढाडी आए ने जेड़े सुर सिंह पिंड दे रहन वाले ने। एक दा नाम, दोनों सक्के भरा ने, एक दा नाम भाई नत्था है ते दूसरे दा नाम अब्दुल्ला है। एक सरंगी वजांदा है ते दूसरा ढड्ड वजांदा है। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब तख्त ते बैठे ते उन्होंने एक वार दी पौड़ी कही, ते प्यारिओ जिस वेले दो किरपाना पाइयां फिर उन्होंने एक पौड़ी कही। जदों तख्त ते बैठे उदों लिखते ने कि सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए कह, कि अज तख्त सच्चा, दुनिया दे तख्त बड़े ने पर धन गुरु हरगोबिंद साहब इट्टां तां ओही ने जिहड़ियां दुनिया दे तख्तां नूं लगदियां ने, पर जिथे तुसी बैठ गए ये इट्टां भी सोहणियां बन गईयां। सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए कह, शब बरनी ना जाए कहूँ क्या गाए कह। धन गुरु हरगोबिंद साहब अज तुहाडे चेहरे दा नूर झलिया नहीं जाता। सच्चा तख्त सुहायो श्री गुरु पाए कह, शब बरनी न जाए कहूँ क्या गाए कह। रब सस भय मलीन सो दर्श दिखाए कह, श्री गुरु तख्त बिराजे प्रभु ध्याए कह। मीर अब्दुल और नथ जस कहो बनाए कह। धन गुरु हरगोबिंद साहब तेरे ढाडियां ने अज यस कहा। जदों दोनों भरावां ने यस कहा तो गुरु हरगोबिंद साहब नूं ना एक कीमती हाथी किसी ने उस वेले भेंट किया ते वारां गाउण वालियां नूं कहण लगे, आओ अज तो बाद आ जिहड़ा हाथी सानू दिता गया असी तुहानू दिता, तुसी हाथी ते चढ़ के आया करिया जी। नत्था ते अब्दुल्ला नूं हाथी दिता। उन्होंने हथ जोड़ के क्या सच्चे पातशाह सानू अपनी सिफत वास्ते रखी। ध्यान दिया जे पहला तख्त बनिया, फिर धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अज दो तलवारां पान लगे ने। इत्थे मैं बेनती करनी चाहना कि मीरी का अर्थ की है ते पीरी का अर्थ की है। मीर का अखरी अर्थ असी अमीर भी शब्द वरतने, पर बाणी विच एक शब्द हुंदा मीर। मीर का अखरी अर्थ हुंदा बादशाह। बाबा नानक ने शब्द वरत्या कि जां मीर सुनिया धाया। मीर का अर्थ है बादशाह बाबर आया। मीर का अर्थ है बादशाह, ते पीर का अखरी अर्थ है जिहड़ा रूहानीयत विच पहुंचा होया है। फिर इत्थे टिकिओ, मीर तो बनिया मीरी ते पीर तो बनिया पीरी। मीर का अखरी अर्थ है संसार का ताकत राज बल, ते पीर का अखरी अर्थ है अंदर दी रूहानीयत। पर इत्थे एक प्रश्न पैदा होवेगा कि बाहर का राज लैन लई तां तलवार चाहिदी है, ते पीरी दी तलवार दा अर्थ की? मीरी दी तलवार तां कोई पाए जिन्हें बाहर का राज लैना है, तख्त ते बैठना है, पर पीरी दी तलवार क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वाले गुरसिखों, अमृत बाणी विच भगतां ने, गुरु साहिबाना ने पीरी नूं भी रूहानीयत नूं भी तलवार दे नाल तुलना दिती है। तुसीं एक बचन पढ़दे हो बाणी विच, बाबे फरीद ने पीरी दी तलवार दा जिक्र करदे एक बचन किया है, जिहड़ा शब्द असीं पढ़ने आ, तप तप लोए लोए खात मरोरूं, बावल होई सो शौ लोरूं, तै शै मन में किया रोष, मुझ अवगण शै नाई दोष। उत्थे पीरी दी तलवार अखीर ते क्या कह लगे, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यों तिखी बहुत पीनी। हाँ भगत करे भगती
ते तुरे खंडे दी धार ते। कहन लगे अंदर दी पीरी कमानी खंडे दी धार ते चलना है। वाट हमारी खरी उडीनी खन्यो तिखी बहुत पैनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ संभार सवेरा। फिर ध्यान दिया जी, एक दूसरा प्रमाण है आनंद साहब की बाणी आप जी पढ़ते हो तो उत्थे गुरु अमरदास ने पीरी की तलवार ते उस तलवार का असर भी दसिया। वो तलवार है कि भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। बिखम मार्ग पीरी है, बिरख बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। कहांगे ये तो संबंध भगत है, नाम जपना मूँह तो, ना बोलना मूँह तो, वासनावां तो अंदर रोकना ते पीरी किवें। कहन लगे प्यारिया चेते रखी, एक कमाई भी तां ही है जे कोई अंदर दी धार ते चलदा है। पीरी दे तलवार है अंदर नूं कमाना। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। ते पीरी दी तलवार है खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। ध्यान दिया जी, मैं कुछ प्रमाण होर दे के संपूर्णता वाल आना चाहना। पीरी दी तलवार क्यों? आप बाणी पढ़ते हो, मेरे गुरु नानक साहब की जोत का एक बचन है। हजूर ने फरमाया, कहन लगे जो तो प्रेम खेलन का चाओ एवे पीरी। जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ पीरी। सिर धर तली गली मेरी आओ। जे पीरी दी तलवार पानिया इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै काह ना कीजै। चौथा प्रमाण बाबा जी की बाणी विचों कहन लगे पीरी की है। कबीर सतगुर सूर में पीरी दी तलवार पाई मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने। कबीर सतगुर सूर में बाया बान जो एक लागत ही भुई गिर परया परा करेजे शेख। इत्थे थोड़ा जा समझियो कि मीरी दी तलवार कोई पाए ते बाहर दे दुश्मनां नूं फतेह करदा है ते धन गुरु हरगोबिंद साहब आ पीरी दी तलवार पा के किहड़ा दुश्मन फतेह करना है। सारी जिंदगी 4 जंगां विच गुरु हरगोबिंद साहब ने किते भी पीरी दी तलवार नहीं कड्डी, वो म्यान विच ही रही। महाराज ये पीरी दी तलवार प्रतीक है, पर दसो का सानू ये पीरी दी तलवार किन्ना नू खत्म करेगी। कहन लगे पीरी दी तलवार खत्म करेगी कि जिन मिल मारे पंच सूर वीर सो ऐसो कौन बली रे। जिन मिल मारे पंच सूर वीर सो पूरा है कली रे। हजूर ने कहा ये पीरी दी तलवार करेगी कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां। बाबा बलवंड साहब ने एक बचन क्या है, कहन लगे नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीम दे। ध्यान दिया जी, पीरी की है। वैसे कल्ले पीरी ते बोलना होवे कई दिन का समा चाहिए व्याख्या होवे कि पीरी है की। उत्थे कहंदे ने बाबा लैणा जी आए ते जदों संगत विच बैठे ते गुरु नानक ने किरपान कढ़ के भाई लैणे दे अंदर नूं खत्म कर दिता। वो पीरी दी तलवार सी। शब्द बचन है नाउ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीम दे गुणा सत भैन पर आव है पार अंगत दान पड़ीम दे। नानक राज चलाया सच कोड़ सतानी नीम दे। लैणे धरियों छत सिर कर सिफती अमृत पीम दे। मत गुर आत्म देव दी खड़क जोर प्राकुवै जी दे। गुरु ने गुरमत दी तलवार नाल पीरी दी तलवार नाल बुराइयां नूं कट के रख दिता। फकीर मुसल्ले ते बैठ के इबादत पिया करदा सी ते उन्नी देर नूं शहनशाह जालम चढ़ के आ गया ते किसी ने वेख के क्या मुसल्ले ते बैठ के अल्लाहू कहण वालिया, मुसल्ले ते बैठ के रब दी इबादत करन वालिया उठ इस मुसल्ले नूं वेच ते वेच के खंजर खरीद, क्योंकि हुण मुसल्ले ने काम नहीं देना, हुण खंजर खरीदना पेगा। प्यारिओ चेते रखियो इत्थे माला मुसल्ले शब्द कीर्तन ते बंदगी छड्डी नहीं गई, वेची नहीं गई। इत्थे किरपान दे नाल नाल माला पकड़ी गई, इत्थे पीरी दे नाल मीरी पकड़ी गई, पीरी नूं वख नहीं कीता गया। उसने शब्द कहंदा मुसल्ला बेच कर
खंजर खरीद ए बेअकल सूफी। पर गुरु हरगोबिंद साहब ने बाणी का पक्ष नहीं छड्डिया। मुसल्ला बेच कर खंजर खरीद ए बेअकल सूफी, के टकराने को है तेरी फकीरी से शहनशाही। शहनशाह तेरे नाल टकरान लिए आ रहा है, तू मुसल्ले ते बैठा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने पीरी नूं धर्म नूं सामने रखिया ते फिर नाल मीरी कह लो राजनीति, ਇਹਦੀ तलवार तन ते पाई। अज जदों ये तलवार पाई, असी कई बारी कह देने कि देखो गुरु जी नूं तलवारां पाउण दी की लोड़ सी। अज भी असी कहने जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने पाइयां पवाइयां, बाबे बुढ़े ने मसंदा ने रौला पा दिता कि पहले गुरु बाणी पढ़ते सन, इन्हां तलवारां क्यों पा लईआं। उस वेले कहंदे ने कि मेरे सच्चे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे 11 साल की उम्र सी खजूर की, 11 कुछ साल के करीब दसदे जदों खजूर ने ये तलवारां पाइयां ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्ची सरकार अज जदों तलवार पा के बैठे, रौला पाया गया क्यों तलवारां पाइयां ने, ते धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह उन्हां दे कोल विद्वान सिख बैठे ने, भाई गुरदास उन्होंने कलम चुकी, कहन लगे दुनिया के लोगों, जेकर अपने घर की बाग ते बगीचे नूं बचाना है ते कंडियां दी वाड़ क्यों कर देखो। जे तुसी घर दे खजाने नूं बचाना है ते बाहर कुत्ते क्यों रख देखो। जे तुसी अपने घर दा साजो समान बचाना है ते तुसी ताले क्यों लांदे हो। जे तुसी बाग दे फलां नूं बचाना है ते किकरां दीयां सूलां दी वाड़ क्यों करदे हो। कहन लगे इस करके कोई खजाने नूं लुट ना सके। कहन लगे गुरु नानक दी फुलवाड़ी नूं कोई हथ ना पा सके। मैं चाहना वा इहदे दुआले शस्त्रां दी वाड़ करके जाऊं। उत्थे भाई गुरदास ने शब्द कहन लगे, उन्हां दा बचन आउंदा है, कहंदे ने कुदरत दा एक नेम है, गुलाब फुल दे नाल तिखा कंडा है, चंदन दे पेडे नाल सप है, कमल दे फुल नाल कंडे ने। भाई वीर सिंह गुणा ने तो ये अर्थ ही बड़े सोहने किते। किसे पुछ लिया गुलाब दे फुल नूं, ओए इन्ना सोहना ते आ कंडियां ने तेनू बज ला दिती। ते कहंदे ने फुल ने उत्तर दिता, भलिया तेनू पता नहीं ये कंडे रब ने फट्टी लाए ने कि केवल सुगंधी मान के जाई, तोड़न का यतन ना करे, कंडे मेरी रखवाली ले हैं। उत्थे भाई साहब ने एक वार दी पौड़ी कही, कहन लगे खेती वाड़ जो ढिंगरी, किकर आस पास जो बागे। खेत दे दिवाले असी ढिंगरी दा अखरी अर्थ हुंदा है किकर दे कंडियां दी वाड़ करनी। खेती वाड़ जो ढिंगरी, किकर आस पास जो बागे, सप लपेटे चनना, बूहा जंदा कुत्ता जागै। इसे तरह धन गुरु हरगोबिंद साहब ने अज 2 तलवारां पाइयां ते दोनों भरा भाई नत्था ते भाई अब्दुल्ला अज फिर आए। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने तलवारां पाउण तो बाद एक तकरीर दिती, कहन लगे अज तो बाद मैनू सोने दे गहने नहीं, अज तो बाद मैनू कल्ले चांदी ते सोने दियां मोहरां जां सिक्के नहीं, अज तो बाद कीमती शस्त्र, कीमती घोड़े, कीमती जवानियां चाहिदियां ने। ते नाल एक शब्द कहा, मता सोचियो असी मुट्ठी भारां, जिन्ने भी दरिया पहाड़ां विचों निकलदे ने, निक्के निक्के सोमे एक बारी पाट जान ते दरिया बनते ने, ते दरियावां दे रस्ते पहाड़ भी नहीं रोक सकते। दूसरी गल कही, एक निक्की जी तिली जंगल नूं फूक के रख सकदी है। आखिर तुसी तां ओ सिख हो जिन्हां दे हिरदे नूं अजे कुछ दिन पहला तत्ती तवी दे उत्ते पुनिया गया है। ये शब्द कह ते उस वेले सिख उठ के खड़े होए। धन गुरु हरगोबिंद साहब, बस एक किरपा करो, होर नहीं असी सुन सकते। पूछया कि दो वेले दी सुक्की मिस्सी रोटी दे दिया जे, 6 महीने बाद तन दा एक वस्त्र दे दिओ, अज तो बाद घर नहीं जाना, जिथे लोड़ पै तन दा ठीकरा पन लिया जे। धन गुरु हरगोबिंद साहब अज जदों सिख खलोते ते हजूर ने दस्तार सजाई ते वक्त की हुकूमत की गल की। ये नहीं कि गुरु हरगोबिंद साहब की पग की गल किसी बीते राजे नाल कीती। वक्त के राजे नाल टक्कर सी,
ते नाल उत्थे उन्हां शब्द कहे, अज दे दिन दो तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी, एक अजमत दी एक राज दी, एक राखी करे वजीर दी, हिम्मत बाहां कोटगढ़, दरवाजा बल्ख बखीर दी, नाल सिपाही नील नल, मर दुश्मना करे तगीर दी, ते अखीर ते कह लगे पग तेरी की जहांगीर दी। जहांगीर दी पग गुरु हरगोबिंद साहब दा मुकाबला किवें करेगी? धन गुरु हरगोबिंद साहब दो तलवारां पहन लईआं। इत्थे मैं एक बेनती फिर करनी चाहना वां, गुरमुखो पीरी धर्म है ते मीरी राजनीति है। गुरु ने कली मीरी नहीं पाई, पर अज अफसोस नाल कहना पैंदा है कि असी कली मीरी दियां गल्लां तां करने आ, पर शब्द दी पीरी दी गल किहड़ा करेगा? मीरी दी गल करन वाले, राज दी गल करन वाले, उन्हां नूं पता होना चाहिए है बाहर दियां बादशाहियां भालण वाले हो, पहलां अंदर दी पातशाही लो। मैं सिर्फ संखेप च अखीर ते एक बेनती करनी चाहना कि गुरु ग्रंथ साहब ने पातशाह परमात्मा नूं मन्निया, सिख ने पातशाह परमात्मा नूं मन्निया। ते तुसीं अमृतसर जांदे हो, दो ने, एक दरबार साहिब है ते दूजा तख्त है। मेरे गुरु ने कहा जेड़े तू बाहर देखना है ये रब दे ने, ते तुसीं रोज उत्थों एक शब्द सुनदे हो, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह। मीरी पीरी दा मालक पातशाह दा पातशाह है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह ने चल चौवर छत। इत्थे गुरु नूं रब नूं पातशाह कहा है। तुसीं रोज पढ़दे हो सो पातशाह, शाह पात साहिब, नानक रहन रजाई। जे पातशाह पढ़ना इत्थे बंदे नूं पातशाह नहीं, सिख लई पीर गुरु पातशाह है। ते रोज खरमंदर विचों आवाज़ आउंदी है, खोवै सिबत खसम दी, नूर अरसों कुरसों झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिया। परमात्मा पातशाह, गुरु पातशाह, ते चेते रखियो जिदे अंदर मीरी ते पीरी वस जाए वो सिख भी पातशाह। ओनू गुरु ने कहा जिसनू बख्शे सिबत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। धन गुरु हरगोबिंद साहब दो तलवारां पाईआं ते ओदा असर की सी कि हकूमत दी परवाह नहीं, परवाह पूरे गुरु दी है। अज मेरे धन गुरु हरगोबिंद साहब दे सामने जहांगीर चुकिया। अखीरली बेनती देखो, सिख दे अंदर मीरी पीरी दा सिद्धांत की है, सिख दे अंदर अकाल दा तख्त किन्नी वड्डी थां रखदा है, सिख दे अंदर गुरु दी किन्नी कु वड्डी शब्द दी खेड है। धन गुरु हरगोबिंद साहब जहांगीर सामने चुकिया। ये मीरी पीरी दी शक्ति सी कि ग्वालियर दे किले दे दरवाजे खोले गए। अकला गुरु हरगोबिंद साहब नहीं, उथे हकूमत दे बागी राजे भी रिहा कराए गए। हजूर आगरे दी धरती तो विचरदे कोई जदों आउंदे ने, रस्ते विच एक घटना वापरी, बस इथों समझ लिओ सिख दा तख्त प्रति, पातशाह प्रति, मीरी प्रति ते पीरी प्रति की अंदर दा सिद्धांत है। एक गरीब घाह खोतरन वाला, महलों का मालक नहीं, लोगों के घोड़ियां लई घाह खोतन वाला एक गरीबड़ा जा सिख, दुनियावी तौर पर गरीब है पर आत्मक तौर पर वह पातशाह है। किसी ने आके खबर दी है कि जिस गुरु की तू उपमा करना है वह मीरी पीरी का मालक शहनशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चा पातशाह अज इस धरती ते आया है। हुण उस घाह खोतरन वाले का अंदर देखो, घाह लिया साफ किया, एक टका उहदे कोल सी ते इक्को बेनती की, गुरु हरगोबिंद साहब आपनू पता सी कि सिख गरीब कोल खर्चा नहीं, तेरे तक पहुँचन दा पातशाह निवाजन आ गया, मैं तेरा किन्ना कुछ शुक्र करा। घाह की गठड़ी ते टका लैके गया। इतिहास कहता है, साखी च नहीं यदि डूंघाई च जाओ कि वह चला गया जहांगीर दे कैंप वाल, जहांगीर दे टेंट विच, ते पुछया कि पातशाह
ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਾ ਰੱਖਿਆ, ਘਾਹ ਦੀ ਗਠੜੀ ਰੱਖੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਉਹ ਪੁਰਖਾ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਵਕਾਰਿਆ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀ ਗਠੜੀ ਤੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਠ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਠ ਚੁੱਕੇਗਾ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਖਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਗਲ ਹੈ? ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਧੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਮੁਗਲ ਨੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਬੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਲੋਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟਕਾ ਤੇ ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਠ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਠ ਤੇ ਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਿਆ। ਇੱਧਰ ਗੱਠ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਣ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ ਉਹ ਪੁਰਖਾਂ, ਘਾਹ ਦੀ ਗੱਠ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਤਲਵਾਰਾਂ 2 ਹੀ ਨੇ, ਧਾਰਾਂ 2 ਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਨ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੰਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਖ ਤੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਕੜੀ ਤਲਵਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰਗ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰਗ ਅਤਰਨ ਮੰਡੰਗ ਬਰਬੰਡੰਗ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰਗ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰਗ ਜੋਤ ਅਮੰਡੰਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰਗ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਨੰਗ ਦੁਰਮਾ ਦਰਨੰਗ ਕਿਲ ਵਿਕਾਰਨੰਗ ਅਸਰਨੰਗ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਭਾਰਨ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰੰਗ ਜੈ ਤੇਗੰਗ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਜਈ ਆਪ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪਰਪੱਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੀਰੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੂਣਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ